اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں اسی طرح خوشیاں عطا فرمائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچنا شروع ہو جائے گا۔ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئیں؟ دوستو، ماہ رجب کی فضیلت اور برکات کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے اور اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس کے نام کو پڑھا جائے تو اللہ اپنے نام کے طفیل رحمتوں برکتوں کی بارش چھما کی طرح برساتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کا دن ہے۔ یہ اتنا قبولیت والا دن ہے، یہ اتنا اہم دن ہے۔ آج یہ وظیفہ جو پڑھے گا، آج کوئی بھی یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ وظیفہ شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا رب کریم آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز پوری کرے گا، آپ کی ہر جائز خواہش کو پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، اپنے مقاصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے لو، میرا رب آپ کو جھولیوں میں بھر بھر کر عطا فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھی بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ چکے ہیں، جس کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کی 12 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ رب کریم کی یہ نام مبارک سے پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے بہت زیادہ مانگے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر نہ کرے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ ماہ رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہیں، جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں، تمام صحیفوں پر ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح مجھے محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے، اس طرح آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ جو تا حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے سعودیہ، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کا تعلق کسی
किसी भी माह रजबुल मुरज्जब 12 तारीख पीर के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। आप चाहे सुबह नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, जो भी आपको कोई नमाज है उसकी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है। इस वजीफ़े को नज़रअंदाज हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही फजीलतों वाला है, बरकतों वाला है। तो आपने इस अमल को खुद भी करना है और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं आपने इस वजीफ़े को कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल आपकी खिदमत में डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल क्या है, आज माह रजब 12 तारीख पीर का दिन पूरा आपके पास है। आपको जब चाहे जैसे चाहे वक़्त मिले, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार, 7 बार, 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। मुख्तसर और सादा सा और आसान सा दरूद सल्ले अला मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आपने नमाज वाला दरूद भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक को दरूद इब्राहिमी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश करना, हदियतन तोहफतन पेश करना बहुत पसंद है। 3 बार दरूद पाक, 7 बार दरूद या 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हाजात अलग होती हैं। आपने जिस मकसद के लिए भी वजीफ़ा पढ़ना है, आपने पहले इसकी नीयत करनी है। मसलन बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। अगर आप बे औलाद हैं तो बे औलाद के लिए पढ़ ले। अगर आप नाफरमान औलाद, फरमाबरदार औलाद बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। जिसका भी जो मकसद हो, जो भी ख्वाहिश हो, अपने अल्फाज में नीयत कर लें। अपने ख़ास मकासद की नीयत करते वक्त फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम की शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाए, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत करके ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत मुबारक है। वो आयत मुबारक रजब के महीने में पढ़े जाने वाले अल्लाह का ख़ास करम करती है। ये आयत मुबारक रजब के महीने में पढ़ने वाले पर अल्लाह का ख़ास करम होता है। आपने कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारका की पहली आयत रजब के महीने में, अल्लाह करीम के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह अपनी रहमतें, बरकतें आप पर नाज़िल फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। शुक्र करने वाले के लिए मालो जान, इज्जत, आबरू, बरकतें, वसतें पैदा फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करने वाले के करीब हो जाता है। शुक्र करने वाला रिज़्क़ बढ़ा देगा। शुक्र करने से आपके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती, फ़िक्र व फाका ख़त्म हो जाता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपनी हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार या 33 बार पढ़ लें। सिर्फ 33 या 11 बार पढ़ने के बाद आपने रब्बे करीम से जो दुआ मांगनी है आप मांग ले। दूसरे नंबर पर वजीफ़ा जो पढ़ना है, आपने रब्बुल आलमीन के ख़ास नाम का आज ख़ासुल ख़ास शर्तिया वजीफ़ा है, जिसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहेगी। क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, तो लिहाजा इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत ही बाबरकत और
पाकीज़ा नाम है। इस नाम को पढ़ते ही जिसको चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे रब्बे करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाए। अल्लाह वाले फरमाते हैं, माह रजब 12 तारीख पीर के दिन को जो लोग लापरवाही में गुजार देते हैं फिर वो पूरा साल पछताएंगे। आपने दूसरे नंबर पर या फत्ताहु या रज़ाकु पढ़ना है। और कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है? या फत्ताहु या रज़ाकु, या फत्ताहु या रज़ाकु, या फत्ताहु या रज़ाकु। आपने इसको अपनी हाथ की उंगलियों में या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ लें। जो बंदा या फत्ताहु या रज़ाकु पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए 300 से ज़्यादा रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिज़्क़ की वजह से है। हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं, घर के हालात हैं, सब के सब रिज़्क़ और पैसों से शुरू होते और पैसों पर ही आकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए या फत्ताहु या रज़ाकु को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक वज़ाइफ और पढ़ना है जो कुरानी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। ये वो बाबरकत सूरत है जिस सूरत को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार पढ़ा जाए तो 30 पारों का सवाब यानी एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। ये आम दिनों की बात बता रही हूँ। जब रजब के महीने में पढ़ोगे तो कमो पेश 70 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। सवाब की नियत से एक बार सूरह इखलास मेरे साथ ज़रूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह सूरह हर छोटे बड़े को आती होगी और ज़ुबानी याद होगी। आपने यह सूरह इखलास 101 बार पढ़नी है। आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। जब आप तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार, 11 बार, 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपने अमल में शुरू में पढ़ा था। यह वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से निहायत ही खलूस से दिल से और आज़ाना तौर पर अपनी तमाम मुश्किलात और हाजत को पूरा करवाने के लिए दुआ ज़रूर मांगनी है। आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ मंजूर और कबूल ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की सिर्फ 3 शराइत है। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाइए और खाइए। इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ कीजिएगा। इस यकीन के साथ कीजिएगा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। मैं अल्लाह से जो मांग रही मांग रहा हूँ मुझे ज़रूर मिलेगा। इस वजीफ़े की बरक़ात ऐसी हैं कि एक दफ़ा इस वजीफ़े को करने से आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोताही कमी अपनी रहमत शफ़क़त से हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना आपका सुनना बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के नामों में से कोई कमेंट्स बॉक्स में एक नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।